So you can check. We are given with this one AP series. We are given. So A you can write as 7. Then D you can find like 21 upon 2 minus 7. So it will be 21 minus 7 to the 14 upon 2. So it is 7 by 2. This is your D. Okay. Then you are given with this last term. You can see this one is your last term. So you can keep your an is 84. So with this help of this an, you can use a plus n minus 1 d equal to 84. So a is 7 plus n minus 1 multiplied by d. d is 7 by 2 equal to 84. Okay. So n minus 1 multiplied by 7 by 2 will be equal to 84 minus 7. It will be 77. So now you can check n minus 1 will be equal to 77 multiplied by 2 upon 7. So 7 1 ja like this. So n minus 1 is equal to what? 22. Then there will be n is equal to 23. So this is the value of n you are getting, 23. Now you need to find the sum, that means Sn, it will be n by 2, then a plus an. You know about this formula. ठीक है, तो n is 23 upon 2, then a is how much? It is 7 plus an is 84. So 23 by 2 multiply by 84 plus 7. Okay, so it will be 91. So you can multiply 23 into 91. So it will be 3 1 ja 3, 3 9 ja 27. Then multiply 2 1 ja 2, 2 9 ja 18. So you are getting 3, 7 plus 2 9, 8 plus 2 10 and 2. So 2093 upon 2. This will be your answer, 2093 upon 2. So first you need to find the n, then you can find Sn. देखो बेटा सेम क्वेश्चन है, A13 दिया हुआ है 35. सो A13 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यू नो वी कैन राइट इट एज A प्लस 12D. ये मैं पहले एक्सप्लेन भी कर चुका. A13 को A प्लस 12D क्यों लिखते हैं? इट इज़ इक्वल टू 35. सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ A, दैट इज 7 प्लस 12D विल बी इक्वल टू 35. So 12D will be equal to 35 minus 7. So it will be 28. Now D is how much? It is 28 upon 12. So you can cancel it. 4 3 ja 12, 4 7 ja 28. So D is 7 by 3. Now you need to find S13. So for this S13 you can do what? S13 equals to 13 upon 2. I am using this formula, n upon 2 bracket A plus an. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करूँगा मैं. सो 13 अपॉन 2, देन ब्रैकेट वट इज आवर ए इज आवर 7 एंड देन प्लस an इज वट 35. क्योंकि देखो जब हम S13 फाइंड आउट कर रहे हैं दैट मीन्स हम लोगों को A13 ही चाहिए यहाँ पे. ठीक है, जो भी हमारा Sn जब सेम n की वैल्यू होनी चाहिए. सो A13 इज 35. सो इट विल बी 13 upon 2 multiply by 7 plus 35, it is 42. So 221. Then it is 13 multiply by 21. 13 1 ja 13, 13 2 ja 26 plus 1 27, 273. This is our sum. देखो बेटा इसमें क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP. फर्स्ट 7 टर्म्स, दैट मीन्स S7. Okay, sum of the first 7 term is 49 and the sum of the 17 terms total, ये 17th नहीं है, ये 17 terms है कि S17 अगर हम लेते हैं तो 17 terms का sum 289 है. Okay, so if we will use the formula that Sn is n by 2, then bracket 2a plus n minus 1d. This is the formula for Sn. So I'll try to use the formula here. In place of n, I will be using 7. So that means it is 7 by 2. Then in bracket it is 2a plus n minus 1 होता है. देखो यहाँ पे n minus 1. तो 7 minus 1 it is 6d equal to 49. Then you can take 2 common from these.
यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, सो 7/2 मल्टीप्लाई बाय 2, देन इन ब्रैकेट यू आर लेफ्ट विद व्हाट, a प्लस 3d इक्वल टू 49. सो 2 to 2 कैंसिल, सो a प्लस 3d इज इक्वल टू, ये वाला 7 देख रहे हो, ये 7 जो है इस साइड आके डिवाइड में आएगा, सो 7 से 49 को डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49, सो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7. दिस इज योर इक्वेशन 1 यू आर गेटिंग, ठीक है. देन S17 इज देयर, सो S17 के लिए भी सेम करेंगे, सो 17/2, देन ब्रैकेट 2a प्लस अगेन 17 माइनस 1 16d is equal to 289. ओके, देन वी विल टेक 2 कॉमन, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, सो 17/2 मल्टीप्लाई बाय 2, देन a प्लस 8d इज इक्वल टू 289. ओके, सो नाउ 2 to 2 कैंसिल, दिस 17, ये वाला 17 जो है ये 289 को कैंसिल करेगा, 17 1 जा, देन 17 जा, सो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. सोल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं. सो a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, माइनस 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 कैंसिल आउट, दिस इज माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल आउट, सो 5 1 जा 5 2 जा, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ d वी आर गेटिंग इज 2. d का वैल्यू कितना आया है 2. यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट वाली इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर लो, सो a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 7, सो a प्लस ये 6 आएगा इधर आके माइनस, सो 7 माइनस 6, दैट मीन्स a इक्वल टू आ गया 1. ओके, हमारे पास देखो हम लोगों ने a फाइंड आउट कर लिया, दिस इज आवर a, दिस इज आवर d, बट वी नीड टू फाइंड व्हाट, हम लोगों को फाइंड आउट करना है द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, दैट मीन्स Sn. नाउ द फॉर्मूला फॉर Sn इज n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d. हमने ये ऊपर भी लिखा हुआ है Sn का फॉर्मूला, सो द सेम फॉर्मूला आई एम यूजिंग. नाउ आई विल पुट हियर, सो इट इज n/2, then the value of a is 1. Okay, so 2 multiply by 1 it will be 2 plus n minus 1 into the value of d, the value of d is 2, so it will be n/2, then 2 plus 2 into n, it is 2n, then minus 2. Okay, so 2 to 2 cancel out, so it is n/2 multiply by only 2n, so 2 to 2 cancel out and we are getting it as n square. So this is our answer, the value of Sn that we need to find, sum of n terms will be n square. This is the answer. देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला. यू आर गिवन विद Sn इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वेयर. हाँ ये दिया हुआ है, यू आर गिवन विद दिस वन, Sn इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वेयर. यू हैव टू फाइंड S1. तो सिंपल है, यू विल बी जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1, सो यू विल फाइंड S1, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 स्क्वेयर एंड इट इज 4 minus 1, so you are getting 3. This is your S1. अच्छा, what is the meaning of S1? S1 का मीनिंग क्या होता है? सम ऑफ वन टर्म, सिर्फ एक टर्म का सम. तो इसका मतलब जो वो वन टर्म है वो कौन सी टर्म है? ये S1. जब ये एक ही टर्म का सम है तो वो कौन सी वाली टर्म है? दैट इज द फर्स्ट टर्म. दैट मीन्स आई कैन राइट a इक्वल टू 3. यहाँ पे मैं a की वैल्यू 3 लिख सकता हूँ. वाई आई एम राइटिंग दिस a इक्वल टू 3? a की वैल्यू 3 क्यों लिखा है? बिकॉज S1, दिस S1 मीन्स द सम ऑफ वन टर्म ओनली, फर्स्ट टर्म का सम है ये. देन इफ यू विल पुट n इक्वल टू 2, पुट n इक्वल टू 2, बट यू विल बी गेटिंग S2. इट इज 4 into 2, okay, minus 2 square, so 4 2 ja 8 minus 4 and you are getting it as 4.
सो दिस इज योर S2. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S2? S2 का क्या मीनिंग है? S2 मीन्स A1 प्लस, yes, A1 plus A2, it is 4. देखो A1 plus A2 is 4, the sum of two terms. That means if I know my first term A1 is 3, so if I'll put 3 plus A2 equal to 4, so A2 will be what? 4 minus 3, it is 1. This is my A2, this is my A1. So can I calculate the D now? Can I calculate D? D is what? A2 minus A1. So what is A2 we are having? A2 is 1 and A1 is 3. So it is 1 minus 3. And we are getting D as what? Minus 2. This is the value of D I am getting. Minus 2. Now what I need? देखो A find out हो गया, S1 find out हो गया, S2 find out हो गया, A2 भी हो गया. I need A3. So A3 I can write as A plus 2D, that means 3 plus 2 into minus 2, it is 3 minus 4 and it is minus 1. This is my A3. So A3 भी find out हो गया. Next what I need? अब क्या चाहिए? A10. So A10 means what? A10 is A plus 9D. So it is 3 plus 9 multiplied by minus 2. So it is 3 minus 9 to the 18 minus 15. This is A10. Then AN. AN is A plus N minus 1D. So you can put A. A is what? 3 plus N minus 1 into D. D is what? Minus 2. So you will be catching 3, then minus 2 into n, it is minus 2n, minus 2 into minus 1, it is plus 2. So an you are getting 3 plus 2, 5 minus 2n. This is the value of an you are getting. So all your answers are here. सारे answers हो गए हैं तुम्हें जो जो find out करना था. तुम लोगों को 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो डिविजिबल होते हैं 6 से, वो उनका सम निकालना है. तो तुम अगर 6 के मल्टीपल्स लिखोगे, यू विल बी राइटिंग 6, देन 12, देन 18, लाइक दिस यू विल बी राइटिंग. सो द वैल्यू ऑफ ए इज 6, द वैल्यू ऑफ डी इज ऑल्सो 6, 12 माइनस 6 करोगे, एंड एन इज गिवन 40 बिकॉज यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ 40 टर्म्स. सो S40 you can find it by using 40 by 2, then you know ना Sn is equal to ये वाला n by 2, then 2a plus n minus 1d. ठीक है, यही यूज करेंगे. सो 2 multiply by 6 plus n minus 1, 40 minus 1 39 into 6. So it will be 2 से डिवाइड कर लो, 20 आएगा, then 2 6 जा 12 plus 6 9 जा 54, 5 carry, 6 3 जा 18 plus 5 23. So 20 multiply by 246. Okay, 246. 12 plus 2 34, 246. Then 2 6 ja 12, 2 4 ja 8 plus 1 9, 2 2 ja 4. So this is your answer, 4920. This is the sum of 40 first 40 positive integers divisible by 6. ये जो है ना एक पोटैटो रेस है, इसमें क्या करना है, द कॉम्पिटिटर विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. वो बकेट से स्टार्ट करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा. ओके, टू रन इन द डायरेक्शन ऑफ पोटैटोज ही हैज़ टू रन. इस साइड में रन करेगा वो, इधर से यहाँ पे. क्या करना है रेस में, फर्स्ट ही विल गो पिक अप दिस पोटैटो, यहाँ से पोटैटो लेके वापस आएगा, इसमें डाल देगा. ठीक है, उसके बाद फिर से जाएगा सेकंड पोटैटो, ये वाला फर्स्ट पोटैटो लेके आ चुका था, यहाँ पे अब कोई पोटैटो नहीं है, अब सेकंड वाला पोटैटो जाएगा उठा के इधर लाएगा. तो इस तरह से ये रेस है. सो इन द क्वेश्चन इट इज आस्किंग हाउ मच टोटल डिस्टेंस, कितना टोटल डिस्टेंस वो कवर करेगा इस रेस में
अगर उसको 10 ऐसे पोटैटोज को पिक करना है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, फॉर फर्स्ट पोटैटो, जब वो फर्स्ट पोटैटो के लिए रन करेगा तो फर्स्ट पोटैटो के लिए वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, डिस्टेंस 5 मीटर जाना 5 मीटर आना, सो टोटल 10 मीटर। देन फॉर सेकेंड पोटैटो के लिए वो कितना जाएगा डिस्टेंस, दैट इज, हाँ देखो, फर्स्ट पोटैटो के लिए 10 मीटर, सेकेंड वाले के लिए 10 + 3 8, देन अगेन 8 वापस, सो 16 मीटर। देन हाँ, देन थर्ड पोटैटो के लिए चेक कर लो, थर्ड पोटैटो के लिए वो क्या करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 5 + 3 8 + 3 11, ठीक है, 11 मीटर जाएगा 11 मीटर आएगा, ठीक है, 11 मीटर जा रहे हैं 11 मीटर आ रहे हैं, सो 22 मीटर। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ एपी, ये एक एपी बन रहा है, दैट मीन्स द ए इज 10 एंड डी इज 6, क्योंकि देखो 10 आ रहे हैं 16 आ रहे हैं 22 है, देन डॉट डॉट डॉट, ये एपी बनता जा रहा है। सो यू विल बी कीपिंग योर ए एज 10, डी इज इक्वल टू 6 and you need to find the sum of 10 terms, n is 10 because total 10 potatoes are there, okay, so S10 will be 10 by 2, then bracket 2 multiplied by a is 10 plus 10 minus 1 it is 9 multiplied by d is 6, so that means it is 2 5 ja 10, so 5 20 plus 9 6 ja 54, so 5 multiplied by 54 plus 20 74, so 5 4 ja 20, 0 2 carry 5 7 ja 30, 370 meter. That means total distance that will be covered by the candidate is 370 meter for this race, 370 मीटर कवर करेगा। देखो टोटल जो है 200 लोग्स रखे हुए हैं, ठीक है, टोटल 200, वो कुछ इस तरह से हैं कि सबसे नीचे वाली रो में, देखो ऐसा होता भी है, हम जब कोई चीज़ें ऐसे प्लेस करते हैं ना, सबसे नीचे वाली रो में ज़्यादा होता है, फिर उससे ऊपर में एक कम कर देते हैं, फिर उससे ऊपर जब प्लेस करते हैं तो एक और कम कर देते हैं, ठीक है, ऐसे। तो उन्होंने बोला कि टोटल 20, हाँ, सम ऑफ दीज लोग्स, देखो सारे जो लोग्स हैं उसका SN दिया हुआ है 200 की, हमारे पास टोटल 200 लोग्स हैं, सबसे नीचे वाली रो में 20 रखे हुए हैं, उससे ऊपर 19 रखे हैं, उससे ऊपर 18 रखे हैं, तो उसने बोला कि कितनी रोज में हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n फाइंड आउट करना है, और सबसे ऊपर वाली में कितने हैं तो a भी फाइंड आउट करना है। तो SN के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू 200, क्योंकि देखो SN इक्वल टू 200 है, तो फॉर्मूला यूज किया उसके इक्वल में 200। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इज व्हाट 20 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d वी आर हैविंग -1, ठीक है, सो n/2 इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस n-1 multiply by -1 equal to 200, then n/2, okay, this is 22 ja 40 plus sorry, this -1 multiply by this n, so it will be -n, okay, then -1 multiply by this -1 it is +1 equal to 200। नाउ दिस 2, यहाँ पे ये जो 2 डेनोमिनेटर में है ना, ये 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो n मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 1 इट इज़ 41 माइनस n एंड इट इज इक्वल टू 400, देन n इंटू 41 41n, n इंटू माइनस n इट इज -n² विल बी इक्वल टू 400। इन सबको ना राइट साइड ले आओ, सो n² विल बी पॉजिटिव -41n, okay, and then plus 400 equal to 0। now we need 41, हमें 41 चाहिए, तो 400 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 400 2 2 जा 2 1 जा 2 5 सॉरी 50 आएगा ना, एंड देन 2 25, देन 5 5 जा 5 1 जा,
So it is 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, okay, 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 16 एंड 25 बनेगा बेटा, 16 बनेगा और 25, देखो 16 और 25 को ऐड करने से ना 41 आता है। सो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। नाउ n माइनस 16 minus 25 n minus 16 equal to 0. That means we are getting n minus 16 as one factor, n minus 25 as another factor and equal to 0. So the value of n we are getting is 1 times 16, 1 time n equal to 25. लेकिन अब ये चेक करना है कि हमारे पास दोनों पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं, तो इनमें से दोनों क्या पॉसिबल हैं, n16 भी आ रहे हैं, n25 भी आ रहे हैं। सो चेक करेंगे कैसे, अब हम फाइंड करेंगे a, ठीक है। वी विल फाइंड द टॉप मोस्ट, जो an फाइंड आउट करो, a16 फाइंड आउट करो, a16 विल बी बट a प्लस 15d, ठीक है। तो a क्या है हमारा 20 प्लस 15 इंटू डी कितना था -1, सो 20 माइनस 15, यहाँ पे तो आ रहा है 5। अब a25 फाइंड आउट करो, a25, सो a25 विल बी a प्लस 24d, दैट मीन्स a कितना है 20 प्लस 24 इंटू -1, सो इट इज़ 20 माइनस 24, कितना आएगा -4। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि हम सबसे ऊपर वाले जो लॉग्स रखें वो -4 लॉग्स रखें हम वहाँ पे? नो। सो दैट मीन्स व्हाट, दिस 25 वाला ये हो जाएगा रिजेक्ट, हम इसको नहीं लेंगे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज 25th रो ही नहीं है वहाँ पे, रो आर ओनली 16, दिस 16 इज आवर आंसर, ये 16 n इक्वल टू 16 इज आवर आंसर। एंड इन आवर टॉप मोस्ट रो, जो सबसे ऊपर रो है, उसमें कितने लॉग्स रखे हुए हैं? 5 लॉग्स आर देयर। देखो बेटा, इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये ना मतलब एक स्पाइरल बनाया है, ठीक है। इसमें 13 सेमी सर्कल्स यूज किए हैं, 13 सेमी सर्कल। देखो तुम ध्यान से अगर देखोगे, ये फर्स्ट सेमी सर्कल है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो मैंने ब्लैक वाला बनाया ना, दिस इज़ द फर्स्ट सेमी सर्कल। देन जो मैं यहाँ पे ब्राउन वाला ये बना रहा हूँ, दिस वन इज सेकेंड, इतना ये सेकेंड सेमी सर्कल है, ठीक है। देन जो ये ग्रीन वाला मैं बना रहा हूँ, दिस इज़ द थर्ड वन, इतना, ये थर्ड सेमी सर्कल है। तो अगर मुझे चाहिए कि मैंने जो इसमें ये कॉपर वायर या कोई भी वायर यूज किया है, सो टोटल लेंथ ऑफ वायर फाइंड आउट करना है, देन व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल फाइंड द लेंथ ऑफ सेमी सर्कल 1, सेमी सर्कल 1 का सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल 1 प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल 2, ओके। देन प्लस ऐसे ही करते 3 का, 4 का, 13 तक का फाइंड आउट करना है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल? इट इज पाई r, ओके। सो फॉर द फर्स्ट वन, सेमी सर्कल 1, आई विल कीप इट एज पाई r1, सेकेंड वाला पाई r2, थर्ड वाला पाई r3। मुझे सबका ऐड करना है ना, और कहाँ तक ऐड करना है? पाई r13 तक, okay, total 13 semicircles are there. So now we can take pi common ले सकते हैं इनमें से, it will be r1 plus r2 plus r3 plus dot 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 r13. Now pi value is 22/7, उन्होंने बोला है यूज करना है। Then r1 is how much? 0.5, r2 is 1, r3 is 1.5, r4 is 2, सो प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इस तरह से चलेगा। दैट मीन्स दिस इज एन AP, ये वाला एक AP बन रहा है, दिस सीक्वेंस, दिस सीरीज इज एन AP। तो अगर मैं इसका सम करूँगा, देखो 22/7 को तो मैं अलग रख दूंगा, मल्टीप्लाई इस वाले का सम, देखो A क्या है इसमें 0.5,
डी कितना है वो भी 0.5. नाउ एस एन का फॉर्मूला यानी कि S13, क्योंकि टोटल 13 टर्म्स हैं यहाँ पे. सो S13 विल बी 13/2, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस 13 minus 1, इट इज 12. तो अब देखो यहाँ पे हमने एस एन पुट किया 13/2, 2 इंटू 0.5, देन 12 कैसे आया n-1 एंड देन इंटू 0.5. सो इट विल बी 13/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 5, 2 5 जा 10, सो इट विल बी 1.0, ये 1.0 आएगा. देन 12 5 जा 60, इट विल बी 6.0, सो 1 plus 6, that means we are getting 13/2 multiply by 7. This is the value of Sn we are getting. S13 means इन सब का सम करने पे जो हमें मिल रहा है 13/2 into 7. So I will put it here 13/2 multiply by 7. So 7 to 7 cancel, 2 11 ja, and it is 11 3 ja 33, 11 1 ja 11 plus 3 143 सेंटीमीटर और मिलीमीटर जो भी वहाँ पे दिया हुआ है यूनिट तुम लोग पुट कर सकते हो. अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर, बट द आंसर विल बी 143. an is given to you 9 minus 5n. So first find your a1, just putting the value of n equal to 1. So 9 minus 5 into 1, so it is 4. This is your a1. Then find a2 just by putting the value of n equal to 2. So 9 minus 5 into 2, it is 9 minus 10, so minus 1. Now you can find d. D will be what? It is 9 minus 5 into, sorry, what I am doing? D is a2 minus a1. D is a2 minus a1. So that means it is minus 1 minus 4. So you are getting minus 5. Now you can find Sn easily. So S15 will be 15/2, then bracket 2a. So 2 multiply by 4 plus n minus 1, that means 14 multiply by d, it is minus 5. So you will get 15/2, 2 4 ja 8, 15 14 into 5. So it is minus 70. Then 15/2 multiply by minus 62. Okay, so 2 1 ja, 2 3 ja, 2 1 ja. So 15 into minus 31. Okay, so it is 15 1 ja 15, 15 3 ja 45 plus 1 46, minus 465. This is your answer बेटा. 700 रुपीज़ हैं बच्चों को एज ए कैश प्राइस देना है. ठीक है, 7 स्टूडेंट्स को ये देना है 700. मतलब ऐसा नहीं कि सबको 700 रुपये, हमारे पास टोटल ही 700 रुपये हैं. उसमें से बच्चों को वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना है हम लोगों को, 7 बच्चों को. तो ऐसा करना है कि जैसे कोई बच्चा फर्स्ट आया है तो उसको 100 दे दिया, सेकंड वाले को क्या किया 10 रुपये कम दिया 90, थर्ड वाले को 80 दे दिया. ठीक है, तो इस तरह से है वो कि 10 रुपीज़ लेस देते चले जाएंगे. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ डी वी आर हैविंग इज 10. Sn इज गिवन एज 700 एंड द वैल्यू ऑफ n इज 7, क्योंकि 7 बच्चों को दे रहे हैं. तो हाँ, यू विल पुट हियर d इक्वल टू -10, क्योंकि हम 10 रुपये कम करते जा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे d की वैल्यू -10 कर देना. ठीक है, ये 20 रुपीज़ लेस कर देते हैं, 20 लेस दे रहे हैं ना. तो यहाँ पे देखो n/2 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू 700. सो इट विल बी 7/2, देन 2a प्लस 7 minus 1 6 into -20 equal to 700. Now 7 1 ja 7 1 ja, so ये आ जाएगा 2a 6 2 ja 12 minus 120 equal to 200. Then 2a will be equal to 200 plus 120, it is 320. So 2 से ये कैंसिल करेंगे, so a will be 160. That means first student will get 160
second will get 140, third will get 120, fourth student will get 100, fifth student will get 80, sixth one will get 60, and seventh will get 40. So this is the price distribution.